Hello everyone, welcome back to our channel. So in the previous lecture we have done the introduction part of sinusoids. Now let us move to the next topic, that is phasors. So write down the topic name, phasors. So why we are reading phasors in sinusoidal steady state analysis? Because see, sinusoids are easily expressed in terms of phasors, which are more convenient to work with than sine and cosine function. Okay, so now what is phasor? Write down phasors. Phasor is a complex number that represents the amplitude and phase of a sinusoid. ओके, मीन्स फेजर क्या है? फेजर एक सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एम्पलीट्यूड और फेज रिप्रेजेंट करता है किसका? साइनसॉइड का. ओके, नाउ बिफोर गोइंग इनटू मोर डिटेल्स अबाउट फेजर, लेट अस first revise the basics of complex number. See, this is important because phasors is nothing but a complex number. So we will start with first form of complex number, that is rectangular form. So if I am taking number z, complex number z, which is written as real part of z plus j into imaginary part of z. I am taking real part of z as x and imaginary part of z as y. Then it will become z is equals to x plus iy. This is the general representation of complex number in rectangular form. Okay. Now second form is polar form. So in polar form, we represent complex number as z is equals to r angle theta, where r is its magnitude and theta is its phase. And the third form is exponential form. So in exponential form, we represent complex number as z is equals to r e raised to power j theta, where r is its magnitude and theta is its phase. I already written it. Now, if the value of x and y is given, and we will have to find the value of r, and if the value of r is given and saying that find the value of x and y, then how will we find the value of x and y? By using r, and find the value of r by using x and y. Okay, so write down relation between polar and rectangular form. This is polar form and this is rectangular form. So write down relation between polar and rectangular form. For this, we will consider rectangular coordinate system. So I am taking a rectangular coordinate system. This is my real axis and this is imaginary axis, where this x represents the real part of the complex number and y represents the imaginary part of a complex number. And here I am taking a vector
r. This vector is called r. Okay. Now how we can find the value of r by using x and y, and how we will find the value of x and y by r. See, now we can visualize this complex number as vectors. So let us take here, this is x. Okay, this will be y vector. So if we apply vector rule here, then r will be what? Root over x square plus y square. Yes or no? This is 90 degree and this is, let us say, this is angle theta. So r will be root over x square plus y square. Now see one thing, this theta, if you write cos theta, then cos theta will be what? Base by hypotenuse. So x by r, this base by hypotenuse, x by r. So x will be what? R cos theta. Yes or no? Now let us write sin theta. Sin theta will be what? Opposite by hypotenuse, means y by r. So y will be r sin theta. See, now if the value of x and y is given, then you will easily calculate the value of r by putting this, means you will find the value of r by squaring and x square plus y square, root under root. Okay, and if the value of r is given, then you will find the corresponding value of x and y. So z can also be written as, see, z is what? X plus iy. Then putting the value of x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. Then we will have z is equals to r cos theta plus I r sin theta. This is also a form of complex number. Okay. Now see one thing. For our convenience, addition and subtraction of a complex numbers are better performed in rectangular form, and multiplication and divisions are better done in polar form. Means, say, if I have two complex number like this, z1 is equals to x1 plus iy1 and z2 is equals to x2 plus iy2. This can be all written in polar form as r1 angle theta 1 and r2 angle theta 2. See, in case of addition and subtraction, what we do? We take this rectangular form. We can easily then calculate its total value. See, if z1 plus z2 is asked, then we will what? Take this rectangular form. This will become x1 plus x2 plus y1 plus y2. Same for subtraction. What will be? z1 minus z2. Then it will become x1 minus x2 plus y1 minus y2. But in case of multiplication and division, what we will do? We take this polar form. For multiplication, say z1 into z2. What we will do? r1 into r2, and in multiplication this angle will get added. So theta 1 plus theta 2. And in case of division, means z1 by z2, r1 by r2, and this angle will get subtracted. Okay. Now for reciprocity, see, if asked 1 by z, then use the polar form. Why? 1 by r, and angle will be minus theta, because
अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे ये क्या होता, ये जनरली आर एंगल थीटा होता है, इसे अगर आप ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा ये क्या हो जाता है, अब जाते हुए ये माइनस हो जाता है। ओके, सो दिस विल बिकम दिस। नाउ फॉर स्क्वायर रूट, what about for square root? For square root also we take polar form as root r and theta will get halved. Okay, these are the some basic rules, these are the some basic properties of complex number which you must know. Okay, now coming back to our main topic, that was phasors. How we can write a sinusoid in terms of phasors, or how we can convert the sinusoid. Now let us take a sinusoid given in time domain as Vt is equals to Vm cos omega t plus theta. यहाँ पे आप साइन के टर्म भी लिख सकते हो, मीन्स Vt is equals to Vm sin omega t plus theta, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी, so e raised to power, and we know that from Euler's identity that e raised to power j theta is cos theta plus j sin theta. So you can write as real part of e raised to power j theta is cos theta, and imaginary part of this e raised to power j theta is nothing but sin theta. Okay, so if we want to write this in this form, means I can write this as real part of Vm e raised to power j omega t plus theta is equals to Vt. Yes or no? See, अगर इसे आप एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, Vm e raised to power j omega t plus theta को क्या लिखोगे आप, cos omega t, रियल पार्ट को मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया रियल पार्ट, cos omega t plus theta, same value we are getting or not? So we can write Vt as what, real part of Vm e raised to power j omega t plus theta. Okay, so see, सिंस हम इस Vt को रियल पार्ट से, मीन्स e रेज टू पावर j थीटा के रियल पार्ट से शो कर सके, इसलिए हमने कॉस थीटा लिया। जनरली हर जगह आप कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा ही देखोगे, कोई भी कहीं भी बुक और कोई भी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नहीं लेता, इसलिए हम लोग एज अ रेफरेंस इसे ही मानते, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, इसे रेफरेंस मान के। ओके, सो Vt इज इक्वल्स टू real part of Vm, expand this term, e raised to power j omega t into e raised to power j theta. Yes or no? Now I am going to assume this V vector is equals to Vm e raised to power j theta. So you can write Vt as real part of V vector e raised to power j omega t. सी, जब मैंने क्या किया, इसे सप्रेस किया, मीन्स इसे सप्रेस किया, तो क्या हुआ, वी गॉट वी वेक्टर एज वी एम ई रेज टू पावर जे थीटा, एंड वी नो दैट ई रेज टू पावर जे थीटा को हम लोग ई रेज टू पावर जे थीटा को हम लोग एंगल थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ, दो मेथड है, एक तो आप ये देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल्स टू आर ई रेज टू पावर जे थीटा था, और r एंगल थीटा था या नहीं, r की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो ई रेज टू पावर जे थीटा इज इक्वल्स टू एंगल थीटा हो गया या नहीं। जब आप ई रेज टू पावर जे थीटा को एक्सपैंड करोगे, दूसरी मेथड ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, और वहीं ये थीटा को भी एक्सपैंड करोगे आप एंगल थीटा को, तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देगा। ओके, सो e रेज टू पावर जे थीटा को हम लोग एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन राइट v वेक्टर एज Vm एंगल थीटा. So we can say that by suppressing this time factor, we transform the sinusoids, we transform this sinusoid Vm cos omega t plus theta into what? Phasor domain. This is phasor domain. So thus the phasor transform transfer the sinusoid function from the time domain to
complex number domain, which is also called as frequency domain. See, this is complex number domain or not? If we expand it, what it will be? Vm cos theta plus Vm j sin theta. So this will be definitely a complex term. Okay. So अब यहाँ पे एक बात आती है कि हाउ v वेक्टर e रेज टू पावर j ओमेगा टी जनरेटेड साइन एंड कोसाइन फंक्शन. मीन्स ये जो ये देखो, ये v वेक्टर e रेज टू पावर j ओमेगा टी है. इसे अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा? v वेक्टर cos ओमेगा टी प्लस v वेक्टर j साइन ओमेगा टी. तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मीन्स ये जो फेज़र है वो ये साइन और कोसाइन फंक्शन कैसे जनरेट करती है, ये हमें देखना है. तो चलो इसे अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं कि ये जनरली फेज़र एक साइनोसॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं. सो सी हियर, आई एम टेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्लेन. This is my complex plane. This is real axis and this is imaginary axis. See हमारी वेक्टर क्या है? v वेक्टर e raised to power j omega t, where this v vector is magnitude of this v vector is constant as vm, and see omega t is also constant. Means this, if we take a vector, I am going to rotate a phasor anti-clockwise. So we will rotate this phasor anti-clockwise at constant angular speed. This constant angular, this is angular frequency. So we are, and omega is given as radian per second. So we are going to rotate a vector, a phasor in anti-clockwise direction with a constant speed, that is omega radian per second. Okay. See. This is v vector. So if we, the magnitude of this vector is constant. अगर ये मूव करेगा, अगर मैंने इसे कांस्टेंट स्पीड से मूव कराया, तो आप ये देखो, अगर मैंने इसे ऐसे करके मूव कराया तो ये क्या एक सर्किल को जनरेट नहीं करेगा? मीन्स ये एक सर्किल के पाथ में नहीं मूव करेगा. यस, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी रेडियस इस मैग्नीट्यूड के बराबर होगी इसके वेक्टर के. तो इट विल मेक अ, मीन्स इट विल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ. अब हम इस वेक्टर का प्रोजेक्शन देखते हैं. प्रोजेक्शन इज नथिंग बट इमेज. सी, ये हमारी ओमेगा टी है. मीन्स यहाँ पे जो हो रहा है, ये वाली टर्म क्या कर रही है? ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी. इसमें टी वैरिंग है, मीन्स ये जो टाइम है वो वैरिंग है. तो टाइम वैरिंग होने की वजह से ये क्या होगा, ये फेजर जो है वो रोटेट करेगा. मीन्स ये टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ रहा तो फिर यहाँ ऐसे ऐसे करके रोटेट करेगा. आई एम टेकिंग दिस एक्सिस एज, so I am taking this axis as omega t. I can also take it as t, but I am for convenience, for simplicity के लिए मैंने ये ओमेगा टी लिया. अब देखो मैं क्या करूँगी, इसे मैं रोटेट करना स्टार्ट करूँगी. ये मानो ये एंगल जो है वो मैंने एंगल, सिंस ये ओमेगा टी लिया है, सो एंगल क्या करूँगी मैं? रेडियंस में लूँगी. ओके. मैंने आपको 3 रिप्रेजेंटेशन साइनोसॉइड का पहले ही बता रखी है. एक तो था टाइम डोमेन फॉर्म में, एक ये रेडियन पर सेकेंड फॉर्म में, और एक क्या था? थीटा के फॉर्म में. ओके. सो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप ये थीटा भी ले सकते हो, ओमेगा टी भी ले सकते हो. सिंस यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि टाइम वेरिंग कर रहा है, तो टाइम के साथ ये कैसे वेरी करेगा, इस वजह से मैंने ओमेगा टी लिया. आप यहाँ टी लेके उसे 2π/t और उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में तोड़ के फिर आप कर सकते हो. चलो छोड़ो, ये देखो अब आप ओमेगा टी, अगर मैंने यहाँ मानो कुछ एंगल लिया, ये हमें क्या करना है? इसका प्रोजेक्शन, इस वाली वेक्टर का प्रोजेक्शन इस इमेजिनरी एक्सिस पे देखना है. तो मैं यहाँ ये रेफरेंस मान रही हूँ, मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया. मानो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया, यहाँ पे क्या एंगल 0 है, मीन्स एंगल 0 और टाइम 0. सी, यहाँ पे मैंने टाइम 0 लिया.
यहाँ से क्योंकि मैंने रेफरेंस लिया तो स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एंगल भी देखो इस एक्सिस पे क्या बना रही है, 0 बना रही है यहाँ पे, यानी 0 रेडियन। 0 पे जब आप इस v वेक्टर को प्रोजेक्ट करोगे x ये इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इसका क्या है, ये 0 हो रही है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इस पे 0 हो रही है। सो यहाँ से ये फेजर स्टार्ट होगा। नाउ मैंने यहाँ मूव किया, अब ये आप यहाँ भी मूव कर सकते थे पहले। चलो इतने एंगल से मैंने मूव किया, मानो इतने एंगल मैंने मूव किया, तो इसका प्रोजेक्शन अब लो इमेजिनरी एक्सिस पे, कुछ यहाँ हुआ। अब इसे आप इस टाइम पे देखो, यहाँ कुछ यहाँ प्रोजेक्शन हुआ इसका। इस बार जब ये इस डायरेक्शन में मूव किया, सॉरी यहाँ आ गया, ये वेक्टर मूव करके यहाँ आया, तो इसका प्रोजेक्शन जो हुआ, मानो टाइम समथिंग था, तो सॉरी सिंस ये रेडियन में मीन्स ये कोई एंगल होगा, सो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन हुआ। अब देखो जब ये पाई बाई सॉरी ये तो 90 डिग्री है, तो मीन्स इसे हम लोग पाई बाई 2 बोलेंगे। तो जब ये पाई बाई 2 पे आ जाएगा वेक्टर, तो इसकी वैल्यू देखो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी, प्रोजेक्ट होके ये इतनी वैल्यू देगा, मीन्स यहाँ पे। सो at pi by 2 this vector will project at here, see the curve. Now again since we are rotating in what, anti-clockwise direction continuously, तो यहाँ पे जब मैं आऊँगी तो क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे आप, फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ये क्या हुआ, डिक्रीज करना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा, ये फिर यहाँ आया, कोई वैल्यू होगी एंगल की, सो फिर ये यहाँ पे डिक्रीज करके यहाँ पहुँचा। फिर ये जब 180 हुआ मीन्स पाई हुआ, तो पाई पे देखो आप इसका प्रोजेक्शन इमेजिनरी एक्सिस पे क्या है, 0 है। फिर से ये जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई। अगर आप ये नीचे फर्दर मूव करोगे तो आप पाओगे कि ये साइन वेव को जनरेट कर रहा है। तो ऐसे एक रोटेटिंग फेजर जो है वो साइन वेव को जनरेट करती है, क्योंकि साइन वेव की वैल्यू देखो यहाँ 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1 होती है मैक्सिमम, और ये पाई पे होती है। अब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि ये ट्रायंगुलर वेव क्यों नहीं बना, सिंस ये आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हो, तो अगर आप एंगल की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको एक साइनसॉइडल कर्व ही मिलेगा, ट्रायंगुलर कर्व नहीं मिलेगा। ओके, तो यू कैन चेक बाय पुटिंग द वैल्यूज। नाउ अब ये साइन फॉर्म तो हमारा जनरेट हो गया, अब कोसाइन कॉस जनरेट कैसे होगा। अब इसी प्रोजेक्शन को मैंने तो पहले इमेजिनरी एक्सिस पे प्रोजेक्शन लिया था इस वेक्टर का, दिस वेक्टर। अब जब मैं इसे एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूँगी तो ये हमें कोसाइन वेव देगा। चलो देखते हैं कैसे। सो नाउ वी हैव टू जनरेट व्हाट, कोसाइन वेव। सो आई एम टेकिंग again a complex plane and vector, that vector will rotate in a circle because its magnitude is constant and rotating in constant speed. See हाँ, किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने वो जो साइन वेव फॉर्म की थी तो इसमें मैंने यहीं से क्यों स्टार्ट किया था। सॉरी, ये जो साइन वेव है ये मैंने रेफरेंस यहाँ से क्यों स्टार्ट किया। अगर आप यहाँ से भी लोगे ना तो भी साइन वेव ही फॉर्म होगी। क्यों, यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट करोगे देखो तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगी, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, बट ये साइन वेव को ही, साइन कर्व को फॉलो करेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिंस देखो मेरे को क्या करना था, मैंने रियल एक्सिस को रेफरेंस माना था और क्या किया, इसके अकॉर्डिंगली ये जो प्लेन ली, ये वाली प्लेन ली थी, और फिर अब मुझे क्या करना था, इमेजिनरी एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन, वेक्टर का प्रोजेक्शन शो करना था, इसीलिए मैंने इस एक्सिस को रेफरेंस माना था। अगर आप यही इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ रखोगे तो फिर भी आपकी यही कर्व आएगी। देखो इस टाइम क्या हो जाएगा, ये जो है मैंने जो इस डायरेक्शन में प्लेन लिया है, आप इस डायरेक्शन में प्लेन लोगे या फिर इमेजिनरी को यहाँ लिख दो और ऐसे ले लो, फिर जब हमें प्रोजेक्शन करना होगा वो तो इमेजिनरी एक्सिस पे हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ इमेजिनरी एक्सिस ले लूँ, ठीक है, और यहाँ रियल एक्सिस ले लूँ, तो मैंने क्या बोला कि जब मैं प्रोजेक्शन इस वाले वेक्टर का इमेजिनरी एक्सिस पे करूँगी तो मेरे को साइन वेव मिलेगा।
अब जब मैं इसका प्रोजेक्शन इमेजिनरी एक्सिस पे करना स्टार्ट करूँ, देखो अगर मैं अप मूव करूँगी तो ये क्या, ये वैल्यू आएगी इस पे, यस और नो, मीन्स और आगे मूव करूँगी तो ये, तो मीन्स उस हिसाब से आपको उसके अकॉर्डिंगली मीन्स आपको इधर साइड कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हम इसका प्रोजेक्शन ले सकें। तो वो हमारी कन्वीनियंस ही थी, आप ट्राई करके देख लेना। वैसे अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाउट में डाल देना, ठीक है। चलो फिर अब कोसाइन वेव को ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या करना है हमें, ये हमारी रियल एक्सिस तो है ही, इमेजिनरी एक्सिस है। देखो इसमें अभी हमें क्या करना है, ये रियल एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लेना है। देखो अब उस वहाँ पे भी यही हो रहा था, मैंने क्या बोला था कि आपको अगर इमेजिनरी एक्सिस से ही स्टार्ट करना है तो आपको इधर साइड लेना पड़ेगा प्लेन, ताकि आप उसका जो प्रोजेक्शन है वो शो कर सके। जैसे इसमें देखो आप, इसका मैं प्रोजेक्शन शो करने जा रही हूँ। ये वेक्टर है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसे रेफरेंस माना। देखो यहाँ टाइम इक्वल्स टू 0 लिया, या फिर आप दिस इज ओमेगा टी, इस टाइम इक्वल्स टू 0 तो एंगल भी रेडियन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखो इस वाले में इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे सिंस हमें एक्स ये इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं प्रोजेक्ट करना है, अब किस पे करना है, रियल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वी एम। सो इसे प्रोजेक्ट करो आप, यहाँ वी एम हो जाएगी। अब इसे मैं अगर मैं इधर बढ़ूँ, अब इसका प्रोजेक्शन लो, ये कुछ कम होगा, दिस विल बी लाइक हियर। मैंने ये कुछ एंगल से मूव किया क्लॉकवाइज, दिस टाइम आई एम मूविंग क्लॉकवाइज, ओके। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, ओमेगा जो है वो स्पीड जो है वो हमारी कांस्टेंट है। यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन, फिर मैं यहाँ मूव की, यहाँ से देखो इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन यहाँ आया। जब मैं ये यहाँ से 90 डिग्री मूव कर गई तो 90 डिग्री पे देखो 0 वैल्यू हमारी आ रही है, मीन्स इसका प्रोजेक्शन जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। सो दिस विल बी हियर, अगेन आई एम मूविंग फर्दर, फिर हमारे यहाँ पे 180 पे, ये देखो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन यहाँ, फिर ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा और 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम होगा। मीन्स यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज फॉलोइंग अ कोसाइन फॉर्म। अगर आप इधर मूव करोगे, इधर आओगे तो ये देखो, ये ऐसे करके ये कर्व मतलब बन जाएगा। मीन्स हमें अगर हम ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी वी वेक्टर को रियल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोसाइन फॉर्म मिलेगा। जैसे इसीलिए क्या हुआ था, ये जो इसका इसे जब मैंने तोड़ा था तो ये क्या हुआ था, वी वेक्टर cos of omega t plus j v vector sin of omega t. So here you can clearly see that this is the real part and this is the imaginary part. Means if we project this vector on real axis, then we will get what, cosine form, and if we will project this vector on imaginary axis, then we will got sine wave. Okay, so like this we are seeing that we can generate sine and cosine wave from a rotating phasor. This is a rotating phasor which is rotating at constant speed. Thus siner may be regarded as a rotating phasor. Okay, and this rotation is due to what, which factor, this factor, this time factor. So whenever a sinusoid is expressed as a phasor, e raised to power j omega t is indirectly present in it. Why e raised to j omega t was it is just telling that whenever a टाइम इज वेरिंग, मीन जब भी फेजर मूव कर रहा है तो हमें कोसाइन और साइन वेव मिल रहा है। लेकिन और हमें जब फेजर रिप्रेजेंटेशन करते तो इसमें कोसाइन और साइन तो रहता ही है। दिस इज द साइनर, ये एक साइनोसॉइड ही तो है, इसका बस रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या किए, फेजर में कर दिए। और एक चीज़, वाइल डीलिंग विथ फेजर्स वी टेक ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ओमेगा हम हमेशा कांस्टेंट लेंगे। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं हुई तो हमें साइन और कोसाइन फॉर्म नहीं मिलेगा। अगर आप देखो अगर ये जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है ओमेगा से, और हमारी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगी, तभी ये सर्कल बन रहा है।
क्योंकि ये सब जगह रेडियस जो है वो सर्कल का ही सेम होता है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करती तो क्या होता, सॉरी, ये तो सर्कल तो बनता ही, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करती तो ये जो साइन वेव आ रहा है, स्मूथ साइन वेव हमें मिल रहा है वो नहीं मिलता, या फिर स्मूथ कॉस वेव जो आ रहा है वो हमें नहीं मिलता। तो अगर हम फेज़र के साथ डील कर रहे हैं तो ओमेगा हमेशा कांस्टेंट लेंगे। सो जब ओमेगा कांस्टेंट लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें साइन और कोसाइन फॉर्म मिलनी ही है। सो इसीलिए हम लोग सप्रेस कर सकते हैं इस ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी को। दिस इज़ नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट इन वी एंगल थीटा बट इनडायरेक्टली इट इज़ प्रेजेंट। तो वाइल सप्रेसिंग दिस, मतलब ये रिजल्ट पे कोई ये नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंपली ये बता रहा है कि हमें एक रोटेटिंग फेजर से क्या साइन और कोसाइन वेव मिल सकती है। मीन्स sine is may be regarded as a rotating factor. Okay, so for this means omega is equals to constant in while dealing with phasors. That's why this phasor representation or phasor domain representation is also called as frequency domain. Okay, now I am taking two phasors and कैसे हम लोग उसे उसके मतलब उसे रिप्रेजेंट करते और डील करते वो देखते हैं। सी आई एम टेकिंग टू फेजेस as vm is equals to v vector is equals to vm angle theta and I vector is equals to im angle minus theta। अब देखो मैंने फेजर के डेफिनेशन में भी बताया था कि फेजर इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो अब देखो फेजर में ये मैग्नीट्यूड है इसका और ये एंगल है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग। एक मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया, फिर से रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, मैंने इसे रियल एक्सिस को रेफरेंस माना। तो अब देखो जब हम एंटी क्लॉक वाइज मूव करते हैं तो एंगल का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉक वाइज में नेगेटिव लेते हैं। सो ये जो है वो प्लस थीटा है, इसीलिए अगर ये रेफरेंस माना है तो वी एम विल बी लाइक this will be angle theta anti-clockwise plus theta, and if we rotate clockwise then we will get what, I vector, this is I vector and this is v vector, not im. The magnitude of this vector is im and the magnitude of this vector is vm. This angle is minus theta. See, so in phasor domain plus theta yani plus angle represents leading signal and minus represents lagging signal. Okay, so this is the graphical representation of phasor and तो हमने क्या किया फेजर में, सबसे पहले टाइम डोमेन में क्या था हमारे पास वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। इसे हमने फेजर डोमेन में रिप्रेजेंट करके कैसे लिखा, वी वेक्टर एंगल थीटा, सॉरी वी एम एंगल थीटा। सो अगर टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में जाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस के टर्म में एक सिग्नल लेंगे, क्योंकि ये जनरली हम लोग हर जगह लेते हैं, इसीलिए इसे हमने एक बेसिक और रेफरेंस मान लिया है। सो कॉस के टर्म में लेंगे, फिर उसे उसका जो रियल टर्म होगा इसे हम लोग क्या ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी के फॉर्म में लिखेंगे, उस फिर ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी और ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी प्लस थीटा, इसके रियल टर्म को हम लोग लेंगे और उसमें से जो टाइम फैक्टर होगा जे ओमेगा टी उसे हम लोग सप्रेस कर देंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा दोहरा रही हूँ कि फेजर इन फेजर्स वी टेक वाइल डीलिंग विथ फेजर्स वी टेक ओमेगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मीन्स अगर हम लोग दो फेजर को कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा उसकी जो या फिर ये मतलब दो फेजर के साथ डील कर रहे हैं एक साथ, तो मीन्स हम लोग उसकी जो ओमेगा होगी वो हमेशा क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। या फिर सॉरी ये नहीं, मीन्स अगर कोई भी फेजर हो उसकी जो ओमेगा होगी वो कांस्टेंट होगी। ओमेगा कांस्टेंट होगा तभी हमें साइन वेव और कोसाइन वेव मिलेगा। ओके, नाउ राइट डाउन सम बेसिक रिप्रेजेंटेशन इन टाइम डोमेन and phasor domain.
See, thus far you have know that Vm cos omega t plus theta, we will represent it in phasor domain as Vm angle theta. Now what about Vm sin omega t plus theta? इसे फेजर डोमेन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग Vm कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा और देखो यहाँ थीटा माइनस 90 डिग्री. ओके, नाउ Im cos omega t plus theta, so Im angle theta and Im sin omega t plus theta, we represent it as Im theta minus 90 degree. See here, while comparing these two signals, we take omega is constant. That's why we write this value Vm sin omega t plus theta in terms of Vm theta minus 90. Okay. Now let us write some differences between Vt and V vector. You write down difference between Vt and V vector. So first difference is Vt is instantaneous. Vt is instantaneous or time domain representation. Time domain representation or time domain representation, while V vector is the frequency or phasor domain representation. Okay, domain representation. Second point is Vt is time dependent. Vt in time domain we write as Vm cos omega t plus theta. This is time dependent or not? Yes. But V vector is time independent. Why? Because we suppress the e raised to power j omega t part. See, by suppressing this e raised to power j omega t part, this will not affect our result. Okay. Third one is Vt is always real with no complex term, while V vector is generally complex. Okay, so these are the three differences between what Vt and V vector. Means instantaneous time domain voltage representation and frequency domain voltage representation. See, after this theory part I will take a numerical lecture. उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अभी कुछ जो भी डाउट्स होंगे वो एक बार न्यूमेरिकल्स देखने के बाद सारी क्लियर हो जाएंगी. ओके, नाउ राइट डाउन टॉपिक नेम फेजर relationship between voltages and current in passive elements. See, first one I am taking what? Resistor. So for resistor I am taking a voltage source and a resistor R, and current IT is flowing in it. So this is Vt. See, Vt is, we know that Vm sin omega t, and It will be Vt by R. So we can write It as Vm by R sin omega t. If I will say that Vm by R is as Im, so It will be nothing but Im sin omega t. Yes or no? See, these two are the sinusoids, both are the sinusoids, and see these two are in, means current and voltage have no phase difference. Here यहाँ पे कोई भी phase difference नहीं है, so these are in same phase. So R के केस में कोई भी phase difference नहीं होता है, as it is वो मीन्स जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसी को बस R से डिवाइड करके
करंट की वैल्यू मिल जाती है. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट्स एवरेज पावर. सो P average we will write it as 1 by t 0 to t instantaneous power pt into dt. See this will this formula you will this formula आप लोग ये सिग्नल एंड सिस्टम्स में पढ़ोगे. यहाँ पे अभी ये जानो किस, और बहुत लोगों को पता होगा. सो P average will be 1 by t 0 to t pt dt is what? Vt into it dt. So 1 by t 0 to t Vm sin omega t into Vm by R sin omega t. Now you can write it as Vm Im by t 0 to t sin square omega t. इसे ब्रेक करो आप 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 में. सो क्या हो जाएगा? Vm Im बाई 2t 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt. इसे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आई एम राइटिंग जस्ट फाइनल रिजल्ट PAV वी विल गेट एज Vm Im by 2. So we were getting P average as Vm Im by 2. Break this 2 in two parts. We can write it as Vm by root 2 and Im by root 2. And this is nothing but what? Vrms into IRMS. This is our average power. So either you calculate the maximum voltage and this peak value of voltage and peak value of current, means maximum amplitude, and divide it by 2, you can get the average power, or just calculate its RMS value and voltage RMS value and current RMS value, multiply it, you will simply get average power. So this is a two method, मतलब P average के लिए. Now plot it in a graph. अगर मैंने वोल्टेज का कर्व लिया, दिस इज VT. सी VT क्या है? साइनसॉइड है. और दिस इज IT, ये भी साइनसॉइड है. एंड ऑलवेज नो दैट मीन्स जो भी साइनसॉइड का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो भी साइनसॉइड ही आता है. अब हमें एवरेज पावर निकालनी है. देखो यहाँ प्लस प्लस ये दोनों किस में है? V और I किस में है? पॉजिटिव में है. सो हमारी जो एवरेज पावर मिलेगी वो पावर जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी. अब ये देखो, ये नेगेटिव, ये भी क्या करेगा? इन्हांस करेगा. सो दिस विल, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी. सो यहाँ से अब आप देखो कि जितनी देर में वोल्टेज और करंट अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रही है. देखो साइनसॉइड की ये एक साइकिल है, ये मतलब इसकी ये टाइम पीरियड क्या होता है? जब कोई भी सिग्नल एक साइकिल कंप्लीट करता है. तो साइनसॉइड अपना एक सिग्नल इतने टाइम में कंप्लीट करता है. बट ये जो पावर है, एवरेज पावर, वो अपना जो साइकिल है वो इतनी ही आधी टाइम में कंप्लीट कर लेता है. मीन्स जो साइनसॉइड का टाइम पीरियड है वो पावर के टाइम पीरियड की जो पावर का टाइम पीरियड है, मीन्स पावर का जो है वो वोल्टेज और करंट के पावर के हाफ है. मीन्स आपसे बोल सकते हो कि FP जो है, मीन्स ये जो पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ वोल्टेज की पावर की है. मीन्स अगर हमें जनरली क्या दिया रहता है? 50 हर्ट्ज पे वोल्टेज हम लोग वर्क करते हैं. तो उस टाइम पे जो P एवरेज की अगर पावर पूछे तो वो क्या हो जाएगी? 50 into 2 रजिस्टर के केस में. सो दिस विल बी 100 ओम. सी this will happen when in case of resistor. Always remember that. Okay, so this is for about the resistor. So now that's it for today's video. In the next lecture we see the relationship between current means phasors of current and voltage in case of inductor, capacitor, and then we will start RL series, RC series. एंड उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे सो दैट ये फेजर कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कैलकुलेशन और फेजर की जो कैलकुलेशन है वो क्लियर हो जाए. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें. और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ लें. थैंक यू.